तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ जनाब फारूक अब्दुल्ला। अब बैठिए, तशरीफ रखिए। नारे सरकार, आवाज बाबुलंद। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने शहर में 31वें यौम हुसैन की तकरीबात में एक पुरजोश तकरीर की, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान, उसके आइन और उसकी मुतनव्वे सकाफत की हिफाजत के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। शिव कुमार ने कहा कि मुल्क में खौफ और तशद्दुद के मौजूदा माहौल पर काबू पाने के लिए इज्तिमाई ताउन की ज़रूरत है। इत्तेहाद और ताउन के पैगाम के साथ उन्होंने कहा कि सबका साथ हो जाना एक आगाज़ है, फिर साथ मिलकर सोचना तरक्की है और फिर मिलकर काम करना कामयाबी की दलील है। महात्मा गांधी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि खुद पर काबू पाने के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें, जबकि दूसरों पर असरअंदाज होने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल करें। मुल्क को फ़िरक़ावाराना ताकतों से बचाने के लिए शिव कुमार ने एक हम आहंग माशरे के क़याम का अज़्म किया। इस कोशिश में एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की रहनुमाई का भी एतराफ़ किया। कन्नಡ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, Farooq Abdullah and all friends, Acharya, all others doesn't know Kannada, what to do. Okay. I'll mix little. All the galaxy of leaders of the community from Kashmir to Kanyakumari who have joined here, I wish them for having come to this solidarity, unity and diversity and peace meeting who all have joined here. I always tell one thing, joining together is the beginning, thinking together is the progress, working together is the success. I think we have joined here for this great event. First, I would like to thank for all your prayers, including me, praying me, my party, and you have closed the door of a hated party in the South India. On behalf of the people of Karnataka, you have saved not only Karnataka, you have given a hope to this country. There can be a change in this country. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಭಾರತ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದೀರಿ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಕ್ತಿನೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಟುಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಐ ಕುಡ್ ಹಿಯರ್ Acharya speech, I could hear Farooq Abdullah ji speak. I could see that with their big experience, they have spoken from their heart and they have convinced all of you what is the need of the hour. So let us all look us forward to see that we all will save this country, save the constitution,
save all of the brotherhood. As I don't want to discuss much, we have joined here on our philosophical leader Hussein's day. I think I could read from the text that Mahatma Gandhi ji also took his leave on his day to this victory of the salt satyagraha. But Mahatma Gandhi ji said one thing: if you want to control yourself, use your brain. If you want to control others, use your heart. I think that we are on the job. So ಅದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ I have come here to assure all of you. Today I think from the past 100 days, you have a Congress, strong, vibrant government here. I think you are safe. We are protecting. We will protect from the hatredness. We will give peace to this state. We are committed to this ideology and our leadership of Mr. Mallikarjun Kharge ji, Sonia ji, Rahul ji. And today, our leaders from India also is here. Farooq Abdullah also. Karnataka, we started in Bangalore. That day Amar Abdullah was here. The last month, we started India to save India, to protect India. Let us all join together to save this country. As assured, we need your help, we need your support. Once again, I would like to assure you, we stand, the Karnataka government stand to respect your sentiment, to protect all of you. It is our bound duty. We assure you that we will see that you live in peace in this country. We are bound to it, we are committed to it for a secular outreach. Anyway, I wish all of you, Mr. Aga Sultan, a great friend of mine, who is my General Secretary, working with me very hard. Last year also he invited me, but I could not participate in this event. But this year I came all the way from Tiptur to attend this program. I'm a little bit late. Anyway, I would like to thank all of you. तो लेकिन एक बात और भी सच है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मर्तबा इतना बड़ा है कि उन पर जितना कहा गया है वो कम था, जितना कहा जा रहा है वो कम है, और जितना कहा जाएगा वो भी कम रहेगा। मुझे और हसन अहमद साहब को कल आना था। हमारी कल शाम की फ़्लाइट की टिकट्स थीं। फिर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब से बात होने के बाद पता चला कि भाई उनकी कुछ मसरूफियात हैं, तो 27 की सुबह चलना है। अब दिल्ली से 150-200 किलोमीटर हमारा आश्रम कल की धाम, और सुबह की फ़्लाइट करा दिया आगा सुल्तान साहब सने। तो कल आते तो यहाँ थोड़ा आराम कर लेते, आधी रात को चले, दिल्ली पहुँचे, सुबह की फ़्लाइट ली, हज़ारों किलोमीटर दूर चल करके यहाँ पहुँच करके जो भी मैंने सुना है वो अपनी जगह मुकम्मल है। एक बार मन में आया कि आगा सुल्तान साहब को फ़ोन करके माजरत कर लूँ, माफ़ी मांग लूँ। फिर ख्याल आया कि जन्नत के सरदार तो हुसैन है, और मैं आशिक़े हुसैन हूँ, और वो अपने चाहने वालों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देते। तो कहीं ऐसा ना हो कि जगह रिज़र्व हो चुकी हो और वो खाली हो जाए, तो हाज़िरी लगाना ज़रूरी है। खैर, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, तवज्जो चाहूँगा कि मुझे एक पत्रकार ने फ़ोन किया कि आजकल आप मुसलमानों के प्रोग्राम में बढ़े जाते हैं। मैंने कहा नहीं, तुम गलत कह रहे हो, मैं इंसानों के प्रोग्राम में जाता हूँ।
हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ, उनका मर्तबा, बहुत कुछ कहा गया है और हमेशा जब तक ये दुनिया रहेगी कहा जाता रहेगा। उनका मर्तबा बताने के लिए बस एक बात, एक जुमला, एक सेंटेंस, एक वाक्य, छोटा सा, बहुत बहुत काफ़ी है। यही काफ़ी है, यही पर्याप्त है, यही सफिशिएंट है कि दुनिया के किसी भी कोने में चिराग लेके ढूंढो, कोई अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखता। चिराग लेके ढूंढो, कोई अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखता। और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, नगर नगर, शहर शहर, गांव, हर दुनिया के किसी कोने में जाओ, घर घर में तुम्हें हुसैन मिल जाएंगे। इससे बड़ा और जहां तक हुसैनियत का सवाल है तो ये बात सच है कि हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत है वो कोई उनकी निजी लड़ाई नहीं थी। मुझसे पहले भी इनकम टैक्स कमिश्नर साहब ने इसका जिक्र किया। मैं भी इस बात को बहुत गौर से समझने की कोशिश करता हूँ कि यदि उनकी ज़ाती लड़ाई होती तो ये कहते कि मैं तेरी बैत नहीं करूँगा, मैं बैत नहीं करूँगा। उन्होंने कहा मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ये लड़ाई ज़ाती नहीं है, ये निजी लड़ाई नहीं है, ये उनका अपना कोई मकसद नहीं था, ये सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये सच और हक की लड़ाई थी। तो फिर सच और हक की जब लड़ाई की बात आती है, ये ख्यालात का मामला है, ये आइडियोलॉजी का मामला है। और आइडियोलॉजी का मामला ना होता तो कल की पीठ का पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण मियां इमाम हुसैन की इस बारगाह में हाजिरी लगाने क्यों होता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दो तीन बातें कह के मैं अपनी बात को तमाम करूंगा कि हम सब हुसैन के चाहने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सारी दुनिया हुसैनियत को मानती है। लेकिन जो मंजर नजर आ रहा है, जो हालात नजर आ रहे हैं, वो और दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, डे बाय डे खराब होते जा रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या चूक हो रही है, क्या भूल हो रही है? कहीं बताने में भूल हो रही है, कहीं समझाने में भूल हो रही है, या समझने में भूल हो रही है? मुझे एक बात बड़ी तकलीफ के साथ कहनी पड़ती है कि जो राम का नाम लेकर के किसी का गला काटता है, मैं उसे हिंदू नहीं मान सकता। और मैं ये बात बड़े साफ तौर से कह रहा हूं, छुप के नहीं कहना चाहता हूं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेकर किसी के घर के चिराग को बुझाता है, वो हिंदू नहीं हो सकता है। और जो नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर का नाम लेकर किसी के गले को काटता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता है। जो इस्लाम किसी के दिल को दुखाने की इजाजत नहीं देता है, वो इस्लाम किसी के घर के चिराग को बुझाने की इजाजत कैसे दे सकता है? जो इस्लाम बड़ी कश्मकश में हूं, बड़ी उलझन में हूं, और आपसे भी अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूं। गलती हुई है, भूल हुई है, सबसे बड़ी भूल हुई। वो क्या है? जहां तक मैं समझता हूं, आप सब दानिश्वर लोग यहां तशरीफ फरमा है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर किसी शायर को समझना है तो उस शायर का टेलीफोन नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी शायरी को समझने की कोशिश शुरू कर दो, शायर तक पहुंच जाओगे। किसी चित्रकार को अगर समझना है तो उसके चित्रों से मोहब्बत करना शुरू कर दो, चित्रकार तक पहुंच जाओगे।
किसी बागवान के करीब जाना चाहते हो तो उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसकी बगिया के फूलों से मोहब्बत करना शुरू कर दो, बागवान तक पहुंच जाओगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह किसी ने नहीं देखा, परमात्मा किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर अल्लाह को समझना चाहते हो, वहाँ तक पहुँचना चाहते हो, तो तुम्हें अल्लाह के नबी रसूल पाक से मोहब्बत करनी पड़ेगी। और अगर रसूल पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाना चाहते हो तो कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें अबू तालिब के घर से गुजरना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, और सवाल के साथ साथ एक दर्द भी है, एक नारे सलवात। अब बैठिए, तशरीफ रखिए। नारे सलवात एक बार और आवाज बाबुलंद। अगर आपको नबी तक पहुंचना है तो अबू तालिब के घर से गुजरना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद आपने फरमाया है कि अगर मैं शहर हूं तो अली मेरा दरवाजा है। अब सवाल उठता है कि जो पैगंबर ने आहिस्ता से कहा वो तुम्हें याद रहा, लेकिन जो गदीर के मैदान में चिल्ला करके कहा वो तुम भूल गए। यह सवाल उठता है, यह सवाल उठता है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम ये सब अच्छी अच्छी बातें जलसों में कहेंगे, मंचों पर कहेंगे, एक दूसरे की तारीफ करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करने की बात करेंगे, तो कौमी यकजहती हो जाएगी। शमसी साहब बहुत दानिश्वर इंसान है, कई मर्तबा इनसे मेरी बात हुई है। मैं एक बात यहां भी बेंगलोर की सरजमी पे कह के जाऊंगा कि मोहब्बत की बात करना अलग बात है, मोहब्बत करना अलग बात है। मोहब्बत की बात मेरे दोस्त तो वो भी कर रहे हैं जो नफरत का जहर फैला रहे हैं। आज तक मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैं नफरत की बात कर रहा हूं। सब यही कहते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी धर्म के, किसी भी धर्म ग्रंथ के की किताब के किसी भी पन्ने में कोई लाइन ये नहीं लिखी है कि नफरत करना धर्म है। सब यही कहते हैं मोहब्बत का नाम धर्म है, खिदमत का नाम धर्म है, सेवा का नाम धर्म है। फिर ये नफरत फैल कैसे रही है? हमारा शास्त्र कहता है अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी वसुधा एक परिवार है। तो अगर पूरी वसुधा, पूरी सृष्टि एक परिवार है तो फिर फारूक अब्दुल्ला, आगा सुल्तान, हसन अहमद उस परिवार का हिस्सा है। कुरान के हवाले से कहा जाए, इस्लाम के हवाले से कहा जाए, अल खल्क अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। अगर तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम उस कुनबे का हिस्सा है। लेकिन ये बात हमें माशरे में कहनी होगी। हम क्या गलती कर रहे हैं? हम गलती क्या करते हैं कि हम महफिल में, जलसे में, प्रोग्राम में, मंच पर मोहब्बत की बातें करते हैं। अगर वाकई कौमी यकजहती हमें लानी है तो जो बात हसन अहमद साहब कह रहे थे, मैं उनका समर्थन करता हूं कि बाहें भी
खुली रखनी पड़ेंगी, जहन भी खुला रखना पड़ेगा और दिल का दरवाज़ा भी बड़ा करना पड़ेगा, तब कौमी यकजहती आएगी। और मुझे पक्का यकीन है कि ये वो देश है कि जहाँ से नगमे गाए जाया करते थे, है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जिस देश की धरती से वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र निकला, विश्व बंधुत्व की बात निकलती है, भारत में प्रीत के नगमे, प्रीत को रीत माना गया है, वहां आपसी मतभेद दीन के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये हो क्या रहा है? यहाँ डी के शिव कुमार जी भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं सब सियासत करने वाले सभी लोगों से कहना चाहता हूं, सियासत बुरी नहीं है। अगर सियासत बुरी है, राजनीति बुरी है, पॉलिटिक्स बुरी है, तो फिर देश कैसे चलेगा? देश तो सियासत से चलता है, लेकिन हां, तोड़ने की सियासत बुरी है, जोड़ने की सियासत अच्छी है। हमें जोड़ने की सियासत करनी है। आप उनके चाहने वाले हैं जिनको सलाम करने के लिए पेड़ झुक जाया करते थे। आप उनके चाहने वाले हैं जो उनके ऊपर खुद पर गंदगी फेंकने वालों का भी हालचाल जानने उनके घर चले जाया करते थे। तो सवाल इस मजलिस से, इस मंच से पूरे देश को और पूरी दुनिया को एक मैसेज जाना चाहिए कि लड़ाई धर्म की नहीं है, लड़ाई दीन की नहीं है। अगर लड़ाई धर्म की होती तो 5000 साल पहले महाभारत हुआ, कितनी जानें, खून की नदियां बह गईं, लेकिन न मारने वाला मुसलमान था, न मरने वाला मुसलमान था। और जंगे करबला में, जैसा कि हसन अहमद साहब ने कहा, कोई हिंदू नहीं था। मगर मेरे दोस्तों, जालिम का नाम मिट गया तारीख से, मगर जालिम का नाम मिट गया तारीख से, मगर वो याद रह गए जिन्हें पानी नहीं मिला। आज दुनिया के कोने कोने में हुसैन डे मनाया जाता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में लोग रोते हैं। नामे हुसैन लेते ही आंसू निकल पड़े। फारूक अब्दुल्ला साहब, नामे हुसैन लेते ही आंसू निकल पड़े। पानी को अब भी कितना प्यार है हुसैन से। तो मेरे दोस्तों, अब भी हुसैन से मैं, क्योंकि अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को बोलना है, डी के शिव कुमार जी को बोलना है, बस थोड़ा सा वक्त और लूंगा। मुझे लगता है कि जैसे सूरज को कोई आफताब कह दे, इंग्लिश में सन कह दे, हिंदी में सूर्य कह दे, भास्कर कह दे, दिनकर कह दे, रवि कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सूरज सूरज ही रहता है। ऐसे ही कोई परमात्मा को भगवान कह दे, रब कह दे, खुदा कह दे, गॉड कह दे, परम तत्व कह दे, या अल्लाह तबारक ताला कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अल्लाह है तो हम सब का है और हम सब अल्लाह के हैं। परमात्मा है तो हम सब परमात्मा के हैं, परमात्मा हम सब का है। ऐसा नहीं हो सकता है कि परमात्मा सिर्फ हिंदुओं का हो और मुसलमानों का ना हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का हो, हिंदुओं का ना हो। इसीलिए पैगंबर इस्लाम को रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया। अगर वो सिर्फ मुसलमानों के होते तो रहमतुल मुसलमीन कहा जाता, उन्हें रहमतुल आलमीन कहा गया है। इसलिए मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि रहमतुल आलमीन कहने का मतलब है कि वो जितना आपके हैं उतना हमारे हैं। मौलाए कायनात को मौलाए मुसलमीन नहीं कहा गया, मौलाए कायनात कहा गया है। हज़रत इमाम हुसैन जितना आपके हैं उतना हमारे हैं। कहकर के यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए, कहकर के यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए, हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन है।
कहकर के यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए, हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन है, हर आंख का चमकता हुआ तारा हुसैन है। हर आंख का चमकता हुआ तारा हुसैन है, अरमां है वो रसूल का प्यारा हुसैन है। अरमां है वो रसूल का प्यारा हुसैन है। जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं, जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं, हर सिमत हर जगह दुलारा हुसैन है। तो मेरे दोस्तों, हम सब शुक्रगुजार हैं आगा सुल्तान साहब का कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम उनकी बारगाह में अपनी हाज़िरी लगा पाए। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मौलाए कायनात के लिए मैंने कुछ लिखा है, वो आपकी नज़र करते हुए और दुआओं की दरख्वास्त करते हुए आपसे रुखसती चाहूँगा। एक बार नाराए सलवात मेरे लिए जोर से। कि फलक से जो उतर आया, ज़मीं का वो सितारा है। और ये मौला की शान में आचार्य प्रमोद कृष्णम पढ़ रहा है। अगर शमसी साहब पढ़ें तो कोई बड़ी बात नहीं है, फारूक साहब पढ़ें तो कोई बड़ी बात नहीं है, हसन अहमद और आगा सुल्तान साहब पढ़ें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये कल की पीठ का पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम पढ़ रहा है कि फलक से जो उतर आया, ज़मीं का वो सितारा है। जिसे समझा नहीं कोई, खुदा का वो इशारा है। और मेरी आवाज जहां तक जाए, जिन दिलों को छुए, मुझे दुआओं से नवाजना कि जिसे समझा नहीं कोई, खुदा का वो इशारा है। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो, नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। न इससे कम गवारा था, न इससे कम गवारा है, न इससे कम गवारा था, न इससे कम गवारा है। और समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता, समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता। लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता, लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। अली वालों, अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो, अगर जिक्र अली ना हो तो बंदा जी नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज, आप सब सलामत रहें। इन दुआओं के साथ ये हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे, इंसानियत जिंदाबाद रहे, हुसैनियत जिंदाबाद रहे। इसी ख्याल के साथ आपसे रुखसती चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों ढूंढते हो उनको ज़मीन और आसमान की गर्दिश में? अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं, वो तुम्हारे लिए कहीं भी नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम नाम के मुसलमान हैं, हम अमल के मुसलमान नहीं हैं। अगर हम अमल के मुसलमान होते तो हम डरते नहीं, हम मौत से नहीं डरते, क्योंकि मौत का प्याला हर एक ने पीना है। हम तो छोटे छोटे तिनकों से डरते हैं, क्योंकि हमारा ईमान अल्लाह पे है नहीं। हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम जानते हैं कि हम में वो शक्ति है, नहीं है, बेकार है। 14 से जो जुल्म हो रहे हैं, बर्दाश्त करते जा रहे हैं।
और उफ तक भी नहीं करते, जुल्म होता जा रहा है, होता जा रहा है, और खामोशी से हम अपने ऐश आयाशी में डूबे हुए हैं। शराब, जिना, चोरी, कम तोलना, बेईमानी, झूठ बोलना हमारा अमल बन गया है। कितने हैं हम में से जो नमाज पढ़ते हैं, अजान होती है और हम फजर में एक कान से सुनते हैं, दूसरी कान से इधर बैठ जाते हैं, कहते हैं कल पढ़ लेंगे। वो कल कभी आता नहीं, तहज्जुद की तो बात ही नहीं। फिर भी हम मुसलमान हैं, और जुमे के दिन जाते हैं पढ़ने के लिए कि दूसरे को दिखाने के लिए कि मैं भी नमाजी हूं। ये नहीं पता कि तुम इसको तो बेवकूफ़ बना सकते हो, मगर जिसके पास जाना है उसके पास क्या करोगे? और जाना है, उसे बच नहीं सकते। और खामोशी से एक दूसरे की चुगलियां करते हैं। अगर कोई अल्लाह ताला ने बेहतर बनाया हो तो कहते हैं या अल्लाह इसको गिरा। ये नहीं कहते हैं या अल्लाह इसको तूने दिया, मेरी तरफ भी देख, मेरे पे भी रहम कर। उसकी तरफ तो सोच ही नहीं है। क्या कहूं आपसे, कहां तक कहूं? किसने जुल्म नहीं किया? और कमाल ये देखिए, एक भी हमारा लीडर ये ताकत नहीं रखता कि वो सच बोले और कहे कि खड़े हो। हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, मगर हम अपना हक मांगते हैं। हम कहते हैं उसका हक है, दे दीजिए, मगर हमारा हक भी तो देखिए। हम भी हक रखते हैं जिंदा रहने का। हम कोई बाहर से नहीं आए हैं, हम यहां के हैं। मरना यहां है, इसी जमीन में जाना है। हमें कहा जाता है ये दूर के आए हुए हैं, क्या पता ये किनकी औलाद है, कुछ पता नहीं। यहां तो मुगलों ने भी राज किया, पठानों ने भी राज किया, अलेक्जेंडर भी आया, कौन नहीं आया? और नफरतें इस तरह पैदा की जा रही हैं जैसे कि मुसलमान सबसे बुरा अगर कोई है तो ये मुसलमान है। वो क्यों? क्योंकि मुसलमान ने जब अल्लाह का रास्ता छोड़ दिया और शैतान का रास्ता पकड़ लिया, आज हम उनके सामने बिल्कुल शैतान दिखते हैं। अगर हमने भी अल्लाह की रस्सी को पकड़ा होता तो आज हम भी बेहतर होते। आज हम भी कहते कि नहीं। देखिए मुसलमान मुल्कों का हाल देखिए, हमारे पड़ोसी का हाल देखिए, अफगानिस्तान का हाल देखिए, उसके आगे चलिए और देखते जाइए क्या है मुसलमानों का हाल। एक दफा मैं दोहा गया, एक कॉन्फ्रेंस थी, वो वहां बड़े बड़े नेता आए थे, सदर आए थे कई मुल्कों के, और इजराइल की पहली दफा एक मिनिस्टर आई थी अरब जमीन के ऊपर। और वहां पे सब ये एक अंग्रेज जो आया था उससे तो गुजारिश की कि देखिए जो आपके पास इतना पैसा है वो हमारे पास रखिए, हम आपको इससे बहुत फायदा देंगे। जब मेरा वक्त आया मैंने कहा मुझे ये बताइए ये जो पैसा आपके पास आया है ये किसने दिया? अगर उस अल्लाह ने आपकी जमीन पे ये चीज रखी तो क्या सिर्फ आपके लिए रखी या इसके लिए रखी कि ये आपको दी है, ये आप दूसरों तक भी पहुंचाइए, जो आपसे गरीब हैं, पसमानदा हैं, उनको उठाइए। मैंने कहा मैं यहां आपका पैसा लेने नहीं आया हूं, मैं ये कहने वाला नहीं हूं कि हिंदुस्तान के बैंक में रखिए, नहीं। मैंने कहा ये पैसे को इंसानियत के इस्तेमाल कीजिए, इंसान को बढ़ाने के लिए कीजिए, इंसान की सेहत के लिए कीजिए, कि वो अल्लाह के सामने आपके लिए दुआ करे कि अल्लाह तूने जो इसको दिया है उसने मुझ तक पहुंचाया।
मैं अपने दोस्तों से कहता हूं, तुम जब मेरे घर में खाना खाते हो, ये मैं खिलाने वाला नहीं हूं, खिलाने वाला वो है, मुझे तौफीक दिया कि मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूं। हम तो समझते हैं कि हम खिलाने वाले, हमने मस्जिद बना दी, मैंने मस्जिद बनाई, तुम कौन हो मस्जिद बनाने वाले? अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक नहीं दी होती, तुम ये मस्जिद बना नहीं सकते थे, तुम इसका पाया एक नहीं बना सकते थे। ये हमारी कमजोरी है, हम मुसलमानों की कमजोरी है। कितने हैं जो कुरान करीम पढ़ते हैं, उसके माने समझते हैं। मैं एक दफ़ा अपनी रियासत के एक हिस्से में, पुंछ बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है, वहाँ एक बहुत बड़ा दीनी स्कूल है और एक बच्चे को खड़ा कर दिया गया, वो किरत करे, बहुत खूबसूरत किरत की। मैंने बच्चे से पूछा, जो अभी तुमने पढ़ा बयान किया, उसके माने बताओ। बच्चा कुछ नहीं जानता था, माने बिल्कुल नहीं जानता था। तो मैंने उनके प्रिंसिपल साहब से कहा, मैंने क्या पढ़ाते हो? अगर कुरान रटना है मगर उसकी माने नहीं समझना, तो कल ये बच्चा जो है ये क्या जानेगा कि उसने पढ़ा क्या है, इसका मतलब क्या है और मुझे करना क्या है। ये हालत है हमारी। एक किस्सा सुनाऊं आपको। एक गांव था, वहां एक घर था, आबाद घर था, और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा दिन था। तो उन्होंने इस मौलाना को घर बुलाया कि आज घर इसको खाना खिलाए। बेगम से कहा, घर वाले ने, सरताज ने कहा कि आज मौलाना साहब को घर पे बुलाते हैं। तो बेगम के पास कुछ पैसे थे, उन्होंने दरवाजे के पास एक वो था जिस पे उसने रख दिए थे, दरवाजे के पास। मौलाना आए, खाना खाया, खाना खा के चले गए। तो बेगम ने देखा वो पैसे गायब हो गए। उन्होंने कहा, कमाल है, मौलाना साहब हमारे पैसे ले गए। साल गुजर गया तो अच्छा कहा फिर से बुला लेते हैं। मौलाना साहब को जब बुलाया तो मौलाना साहब बैठे, पानी वानी पिया, तो पूछने लगे, बेगम साहब ने पूछा, मौलाना साहब पिछली दफ़ा आए थे तो आपने कुछ यहाँ पैसे तो नहीं देखे? उसने भाई साहब मैंने देखे, क्योंकि दरवाजे के पास थे, मैं घबरा गया कि हवा आएगी, बिखर जाएंगे, चले जाएंगे, दरवाजे से बाहर ना चले जाएं, तो मैंने ये कुरानी करीम में रख दिए है जो वहाँ पे रखा हुआ है। तब बेगम ने कुरानी करीम खोला और रुपये उसी में पड़े थे। तो मौलाना कहते हैं, 1 साल आपने इसका एक वर्क भी नहीं खोला है। ये हाल है हमारा। कुरान तो रखा हुआ है, जाय नमाज रखी हुई है, तस्बीह रखी हुई है, मगर इस्तेमाल नहीं हो रही है, इस्तेमाल नहीं हो रही। ये है हमारा हाल। इसीलिए अगर हम आज तबाही के धाने पे हैं, क्योंकि हमारा अमल सही नहीं है, हमारा ईमान सही नहीं है, हम उससे बहुत दूर हैं। अगर आपने और हर कौम को ये लगे कि हम उनके साथी हैं, हम उनसे नफरत नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे तब्दीली आएगी, इंशाअल्लाह आएगी। जो आज हमारे खिलाफ बोलते हैं, वो भी जब हमारी अमल ठीक होगी, वो भी समझ जाएंगे कि हम सही थे और हम सही लोग हैं। अल्लाह करे कि वो दिन आए कि ये नफ़रत के बादल जो हैं ये छट जाए। कोई धर्म बुरा नहीं है, इंसान बुरा है। इंसान, धर्म कोई बुरा नहीं। कोई ये नहीं सिखाता कि बुराई करो, झूठ बोलो, बदमाशी करो, चोरी करो, कोई धर्म नहीं कहता, बल्कि यही सिखाते हैं कि दूसरे के साथ अच्छी तरह से कलाम करो, बुजुर्ग के सलाम करो। थोड़ा सा जो तुम बेच रहे हो उसमें कोई रोकता नहीं है तुम्हें कि तुम उसमें अपना कुछ नफ़ा कमाओ, मगर इतना नहीं कि 200 रुपये का है और आप 1600 रुपये का बेच रहे हैं।
वो तो लूट है। अगर हम सच बोलना शुरू करें, सच बोलना आसान नहीं है, सच बोलना बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूँ, खुद मानता हूँ, बहुत बोलना मुश्किल है। मगर जिस दिन आप सच को पकड़ लेंगे, उस दिन अल्लाह आपके लिए रास्ते ऐसे खोल देगा कि आप हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। मैं जो आज आपके सामने खड़ा हूँ, हमारे यहाँ कश्मीर में शिया और सुन्नी में मतभेद होता था, और इस मतभेद को मेरे वालिद ने 38 में ही ख़त्म करने की कोशिश की। जुल्जना निकलता था रात के वक्त, मेरे वालिद निकले और कहा नहीं, जुल्जना दिन को निकलेगा। और जब दोबारा आए जेल काटने के बाद, तो सब आगाओं को बुलाया, वहाँ 4 घर हैं आगा, बड़े आगे होंगे, और कहा इकट्ठे जुलूस निकालिए, एक साल एक आगा निकालेगा, दूसरे साल दूसरे का होगा, तीसरे साल तीसरे का आगा का होगा। पहले तो लगा कि आगाओं में भी, माफ़ी मांगता हूँ ये कहना, यकजहती नहीं है, ये अल्लाह कर। जब वो यकजहती हो गई तो जुल्जना का जुलूस निकलता था। वालिद ने मुझसे कहा, फारूक तुम इस जुल्जना को शुरू करो, तुम जाओ इनके साथ। 7 मील का सफ़र सुबह 7 बजे शुरू करके रात के 10 बजे ख़त्म होता था, और मैं जुल्जना की रस्सी नहीं छोड़ता था। क्यों? क्योंकि मुझे मोहब्बत थी उससे, जिसने इस्लाम को जिंदा रखा, जिसने इस्लाम अपनी कुर्बानी, अपने ख़ानदान की कुर्बानी, अपने दोस्तों की कुर्बानी दी कि इस्लाम जिंदा रहे। और वो जो बादशाह जालिम, मगरूर, उसकी बैत नहीं की, वो था मेरे दिल में जज्बा। अल्लाह करे कि वो जज्बा आप में पैदा हो, तब इंशाअल्लाह मैं आपसे कहूँगा, मुसलमान कभी मरेगा नहीं, इस्लाम कभी मरेगा नहीं। याद रखिएगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा वतन है। कभी ये मत सोचिएगा हमारा वतन नहीं है, ये हम सब का वतन है। जो भी आपका धर्म हो, मजहब हो, ये हम सब का वतन है। हाँ, इस वक्त आजमाइश है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। वो हमें आजमा रहा है कि हमारा ईमान कितना मजबूत है। उस ईमान को पकड़िए, उस ईमान को पैदा कीजिए अपने बच्चों में, अपने ख़ानदान में। इंशाअल्लाह ये बादल हट जाएंगे, हिंदुस्तान फिर से उभरेगा, फिर से वो बाग चमकने लगेगा, और हलकली जो है वो खिलने लगेगी। ये वक्त है, हम सोचें, हम इकट्ठे सोचें, अलग नहीं सोचें। या नहीं कि शिया है, ये सुन्नी है, ये बरेलवी है, ये कुछ और है, नहीं। एक मुट्ठी में जब तक हम नहीं सोचेंगे, और उस हिंदू और सिख और ईसाई और दूसरे मज़हब के लोग जो आपके साथ खड़े हैं, उनका दामन पकड़ के अगर हम नहीं चलेंगे, तो हम इस देश को बचा नहीं सकेंगे, हम किसी को बचा नहीं सकेंगे। इससे पहली चीज़ जो है, आज हुसैनी डे पे जो मैं आपसे कहने आया हूँ, इत्तेहाद और इत्तेफाक, ये है चीज़ जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। आपके इत्तेफाक और इत्तेहाद ने ही यहाँ पे इसकी हुकूमत लाई, शिव कुमार जी की। ये बहुत काम करने वाले हैं, इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनको कामयाब करे। इस हुसैनी डे पे मांगिए अल्लाह से कि इनको मजबूत करे। ये शमा जो यहाँ जली है, ये शमा ज़रूर छोटी सी है, मगर इंशाअल्लाह यही शमा आपकी दुआओं से एक सूरज की किरण बन के इस वतन पे छा जाएगी, और दुनिया में एक नई किरण लाएगी। नफ़रतें हर जगह हैं, उन नफ़रतों को हमने गिराना है, मोहब्बत से गिराना है, नफ़रत से नहीं। कोई गाली मारे यहाँ से,
सलाम पेश कीजिए और अल्लाह से मांगिए, या अल्लाह इसको सही रास्ता दिखा, ये नहीं यहाँ से थप्पड़ मारो, वो रास्ता हमारा नहीं। हमारा रास्ता है अपना वक्त, अपना मजबूती से अपना हक मांगो, डरो मत, अल्लाह के सिवा किसी से मत डरिए। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और मुझे भी मरने से पहले वो दिन दिखाए जब यहाँ इंसानियत का सूरज हमारे वतन पे फिर से चमकेगा। मुझे माफ़ करना, आई एम नॉट अ स्पीकर, मैं जाकिर नहीं हूँ, ना ही मैं शायर हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ जिसे आका हुसैन का बहुत करम मिला है और उन्हीं का सदका है जिसके वजह से मैं आज यहाँ आपके सामने हूँ। कुछ बोलूँ उससे पहले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अयाम अज़ा चल रहे हैं, कुछ ही दिन में अरबैन, आप सब, काश कि मैं ये कह सकता हम सब, पर आप सब करबला के लिए रवाना होंगे, अरबैन मनाने के लिए, बीबी को पोरसा देने के लिए, ज़ियारत करने के लिए। करबला भी एक मोजज़ा है जो मैंने, हालांकि 2 बार ही गया हूँ मैं, तो जो मैंने देखा है, जो मेरे साथ हुआ है, वो मोजज़ा से कम नहीं है। हर साल तादाद बढ़ते जाता है वहाँ, लोग कहते हैं 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ का मजमा है। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लोग पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, ज़ियारत हो रहे हैं। पर जो मैंने महसूस किया वहाँ पर वो ये था कि मैंने देखा कि खाना खाने वाले से ज़्यादा खिलाने वाले वहाँ मौजूद है। पानी पीने वाले से ज़्यादा पानी पिलाने वाले वहाँ मौजूद है। सहूलियत लेने वाले से ज़्यादा सहूलियत देने वाले वहाँ मौजूद है। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग जो वहाँ है तो सही लेकिन दिखाई नहीं दे रहे? कौन है ये लोग? तब मतलब कहते ना, मेरे हिसाब से तो मुझे ये समझ में आ गया, या मैंने ये इस बात को माना कि अगर चाहने वाले की ये ताकत है, चाहने वाले की ये ताकत है, तो जरा सोचिए जिसे ये चाहते हैं वो कितना ताकतवर होगा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब पहली बार वहाँ गया था तो हम सब नजफ़ में उतरे और 1-2 दिन शायद वहाँ थे नजफ़ में, और रात को ही मैं मेरे बेटे के साथ मैंने कहा कि चलो भाई यहाँ आए तो लूट लो, रूम में बैठने का मतलब नहीं है, चलो ज़ियारत करते मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे। जैसे हम गए तो भीड़ बहुत थी माशाल्लाह, और ऐसी वैसी भीड़ नहीं, कहाँ कहाँ से अलग अलग देशों से लोग वहाँ आते हैं, लंबे चौड़े। जहाँ मेरी हाइट टूटती है वहाँ से तो उनकी हाइटें शुरू होती है, लंबे लंबे चौड़े माशाल्लाह। हैदर 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 बोल के जो अंदर घुसते हैं,
तो एक तरफ एक गेट से मैं निकल गया बाहर, एक गेट से मेरा बेटा अलग हो गया, हम अलग हो गए। फिर बाहर निकले, फिर किसी ने कहा एक काम करो, रात के 1:30 बजे 2 बजे आप जाओ, शायद लोग कम होंगे तो आप जरी तक पहुंच जाओगे। तभी भी हमने ट्राई किया, तभी भी नाउम्मीद हो गए। फिर किसी ने कहा कि फजर के नमाज से पहले चले जाओ, शायद पहुंच जाओ। वो भी ट्राई किया, फिर अलग हो गए। फिर वहाँ से जब रवाना हुए करबला की तरफ, तो जो साथ में टूर में थे वो लोग कई बार जा चुके थे। उन्होंने कहा माफ़ करना, अगर यहाँ जरी तक नहीं पहुँच सके तो करबला में तो नामुमकिन है। बोले वहाँ तो जो भीड़ होगी वो आप सोच भी नहीं सकते। दिल टूट गया, ऐसा लगा कि पता नहीं यार ये क्या गुनाह कर दिए ज़िंदगी में कि हम जरी तक नहीं पहुँच पाए, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने। करबला पहुँचे, होटल में सामान वामान रखे, फिर निकल गए। मैंने कहा बेटा चल आजमाते किस्मत। यकीन मानो बखुदा, पहले हम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के ज़री पर गए, होटल के बिल्कुल करीब था। तो वहाँ अंदर गए, जैसे तैसे करके गए, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। और यकीन मानो जैसे ही हम ज़री के थोड़े नज़दीक गए, सामने से भीड़ खाली। ये देखिए भीड़ खाली बिल्कुल, ऐसे लग रहा था ज़री बुला रही है मुझे। मैं मेरा बेटा लपक के हम जा कर के ज़री को हमने पकड़ लिया। मुझे लग रहा है 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड बहुत बहुत है ये वहाँ पर। अरबईन के वक्त 30 सेकंड भी अगर आप ज़री पे हो तो ये वो तो भाई हमारा तो बोलते ना भूख ही नहीं मिट रही थी। हम वहीं थे, पकड़ के खड़े थे, जो खड़े ही रहे। फिर वो जो वहाँ खादिम होते हैं, जो उन्होंने ऐसे फ़र से कहा कि अभी हम लोग वहाँ से निकले, एक जोश आ गई, एक कहा कि क्या हो गया, ये मुजज़ा हो गया है। तो वहाँ से निकले, भागे भागे गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़री पर। वहाँ गए और वहाँ भी यही हुआ, भीड़ थी। सडनली सामने से भीड़ गायब, ज़री बुला रही है, हम जाकर के ज़री को लपक लिए। वहाँ तो और भी वक्त मिला हमें खड़े रहने का। और आप मानोगे नहीं, जब तक हम वहाँ थे उसके बाद सामरा और आगे जहाँ जहाँ टूर जाती है, जब हम वहाँ रोज़े पर गए आका हुसैन के और मौला अब्बास के, मेरे और मेरे बेटे के साथ ऐसा ही हुआ। ऐसा लगता था सामने से सब हट गए। वापसी में मैंने मेरे बेटे से कहा कि कुछ समझा बेटा, ये क्या हुआ? आम आदमी हूँ इसीलिए मेरी समझ ऐसी है। मैंने कहा कि बेटा नजफ से मैसेज आया था, कहा कि 2 बच्चे निकले यहां से नाउम्मीद होकर के, मायूस होकर के, उन्हें नाउम्मीद होने मत देना। या अली, ये है मुजज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। दूसरा मुजज़ा, एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे मुझे, जिसका इलाज सर्जरी था। और मामूली सर्जरी नहीं, वो सर्जरी कुछ ऐसी थी कि जब उसके बारे में बताया गया था तो मेरी माँ बेहोश हो गई। बाद में ये घर जब आए तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा आई विल नॉट अलाउ यू टू गो अंडर द नाइफ, मतलब मैं सर्जरी होने तो नहीं दूंगी, भले ही तुझे कुछ भी हो जाए। तो मैंने कहा फिर? बोले तू फिक्र मत कर, तेरे को और बड़े सर्जन के हवाले करती हूँ। हमारे घर में मिंबर है, छोटा सा मिंबर है। उस मिंबर में जो अलम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, मुझे उन्होंने उस अलम के साथ गिरवी रख दिया। और इस बात को आज 22 साल हो गए। बस
मेडिकल साइंस अपनी जगह है विद ड्यू रिस्पेक्ट, और अकीदा अपनी जगह है, और ये एक माँ का अकीदा था, वो भी आका हुसैन का। सो ये दो ऐसे मोजेज़े हैं जो मैंने देखा है, और भी कई है लेकिन बहुत सारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं यहाँ पर। मैं अपनी बात को तमाम करूँगा, मैं भी एक छोटा सा शेर बोल दूँ, माफ़ करना मेरे अलीफ ज़बर की तमीज़ नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ। कि ना पूछ कैसे कोई शाह मशरक़ैन बना, ना पूछ कैसे कोई शाह मशरक़ैन बना, बशर का नाज नबुवत का नूर ऐन बना, बशर का नाज नबुवत का नूर ऐन बना, अली का खून लुआब रसूल शीर बतूल, मिले है जब ये अनसर फिर हुसैन बना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं जिस पर बशरियत नाज करती है, जिसने हक़ का बोल बाला किया जो बातिल के आगे सर सिपर हो गया, जिसने अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन हक़ की सरफराजी के लिए सर नेज़े पर चढ़वाकर पूरी इंसानियत के लिए सबक छोड़ा कि अगर हक़ की खातिर अपने कुनबे समेत सर भी देना पड़े तो दरह न किया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में जो अजीम कुर्बानी पेश की है, वो इस बात को साबित करता है कि बातिल हमेशा मिटने वाला है। कौन है हुसैन? हुसैन वो हैं जो नवासाए रसूल हैं, जिगर गोशाए बतूल रसूलुल्लाह की आँखों के नूर, सरदारे नौजवाना ने जन्नत, शहसवारे दोशे रसूल, हैदर क़र्रार के लख्त जिगर, फ़ातिमा के नूर नज़र, इस्तिक़ामत के जबल अहद, इस्तक़लाल की नय्यर ताबा, बुलंदियों के मुंतहा शब ये मुस्तफ़ा। हुसैन वो हैं जिनकी पैदाइश पर सबसे ज़्यादा खुशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई। हुसैन तो वो हैं जिनका नाम रसूलुल्लाह ने रखा। हुसैन तो वो हैं जिनको घुट्टी रसूलुल्लाह ने अपने लुआब दहन की दी थी। हुसैन तो वो हैं जिनका नाम आसमानों से अता किया गया। हुसैन वो हैं कि आज से पहले कायनात में किसी का नाम हुसैन नहीं था। हुसैन वो हैं जिन्होंने 25 हज पैदल अता फरमाए। हुसैन वो हैं जो रात को नवाफिल में खड़े होते तो पहली ही रकत में अज़ान फ़ज्र का वक्त हो जाता। हुसैन वो हैं कि इश्क़ इलाही में इस कदर आहोजारी करते कि चेहराए अनवर पर आंसुओं से लकीरें बन गईं। हुसैन वो हैं जो अपने कंधों पर राशन उठाकर 1400 से ज़ाहिद घरों तक पहुँचाते। हुसैन वो हैं कि नमाज तहज्जुद, तकबीर ऊला और नमाज जनाजा जिनसे कभी नहीं छूट पाई। हुसैन वो हैं जो मुस्कुराते तो हज़रत उस्मान फरमाते कि जन्नत में बहार आ गई है। हुसैन वो हैं जिनको धोखे से बुलाकर शहीद किया गया। हुसैन वो हैं जो नाना के दीन के लिए अपने अहलो अयाल समेत जान अपने रब के नाम पर कुर्बान कर गए। हुसैन वो हैं जिन्होंने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत फरमाई कि कातिल भी आया तो उसे भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ से पानी पेश किया गया। हुसैन का जिक्र सिर्फ ईमान का तकाजा नहीं, इश्क़े हुसैन बख्शिश की भी सनद है। इंसान को ज़रा बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कलाम मुलाहिज़ा कीजिए। कलाम से पहले चंद जुमले कि अल्लाह की इस पूरी कायनात का अकेला सच्चा है मोहम्मद, जिसे सच बोलना नहीं पड़ता। जो उनके लबों पे मचल जाए वही सच है। जो अपनी कम शऊर कौम की जहनी सतह पर कदम रख के बात करे और उसकी हर बात अजान बनकर पूरी कायनात में गूंजे, उसे नज़रियात इस्लाम के मिसाब में मोहम्मद कहते हैं। जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर भी बोलने लग जाते हैं, उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद मुमकिनात इंसानियत की पहली और आखिरी शख्सियत का नाम है, जो अगर कड़वे पानी के चश्मे के मुंह पे थूक दे तो वो पानी पीने वाले का मुंह मीठा कर दे। कलाम मुलाहिज़ा कीजिए। रसूले खुदा की गुलामी में क्या है, ज़रा तुम गुलामी में आकर तो देखो।
रसूले खुदा की गुलामी में क्या है, जरा तुम गुलामी में आकर तो देखो। गुलामी ये है बादशाही से बढ़कर, इधर आओ किस्मत जगा कर तो देखो। रसूले खुदा के गुलामों के आगे सरे ताजदारा भी खम हो रहे हैं। किसी ताजवर की हकीकत ही क्या है, तुम इनकी गुलामी में आकर तो देखो। वो देखो दो आलम यहाँ झुक रहे हैं, वो जिन्नों बशर सब यहाँ झुक रहे हैं। जो तुमको भी हो फैज़ पाने की ख्वाहिश, जबी ने अक़ीदत झुका कर तो देखो। मोहब्बत का दावा तो आसान है करना, है मुश्किल मगर नज्म उल्फत में मरना। हुसैन इब्न हैदर की मानिंद यारों, मोहब्बत में सर को कटा कर तो देखो। रसूले खुदा की गुलामी में क्या है, ज़रा तुम गुलामी में आकर तो देखो। अली किसे कहते हैं? साहिबे फ़िक्र नज़र हक़ को वली कहते हैं। काशिफ़े कंज़ हबीबे अज़ अली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उन्हें अपने अक़ीदे में अली कहते हैं। और आईना खान उन्हें अक्स जली कहते हैं। लहजाए इश्क में वलियों का वली कहते हैं। और दूर तक फैली है तारीख़ में उनकी खुशबू, उनकी बीनाई के शोले को अली कहते हैं। इल्म के शहर का दरवाज़ा है लक़ब उनका, उनकी हर सांस को हिकमत की गली कहते हैं। हर्फ हर्फ उनको पढ़ा तो ये मालूम हुआ, लुग़त दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अली कहते हैं। या अली। मैं आपके सामने बेदम शाह वारसी साहब का एक बेहद मकबूल कलाम पेश करूँगी, मुलाज़ा कीजिए। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली, हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम, पेशवाए तमाम विदारम के सगे कुए शेर यज़दानम, शाह मर्दान अली, शाह मर्दान अली, लाफता इल्ला अली, शेर यज़दान अली, अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली अली, तन पर अली अली हो जुबां पर अली अली, तन पर अली अली हो जुबां पर अली अली, मर जाऊं तो लिख देना कफन पर अली अली हक अली 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 मौला अली अली हक
अली 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 मौला अली अली। बगैर हुब्ब अली मुद्दुआ नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलता खुदा नहीं मिलता। हक अली 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 मौला अली अली, हक अली 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 मौला अली अली। बसत तलाश न कुछ वुसअते नजर से मिला, निशान मंजिल मकसूद राह बर से मिला। अली मिले तो मिले खानाए खुदा से हमें, खुदा को ढूंढा तो वो भी अली के घर से मिला। हक अली 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 मौला अली अली। खुलूस दिल से अली का जो नाम लेता है, वही तो लज्जत उम्रे तमाम लेता है। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, अली का नाम तो गिरतों को थाम लेता है। हक अली 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 मौला अली अली, हक अली 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 मौला अली अली। नजर हकीकत शनास पाई तो क्या कहूँ किस अदा को देखा, हर एक जर्रे में जलवा फरमा मोहम्मद व मुर्तज़ा को देखा। कसम खुदा की अली नबी से, नबी अली से जुदा नहीं है। अली को देखा नबी को देखा, नबी को देखा खुदा को देखा। अली 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 मौला अली अली, हक अली 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 मौला अली अली। दीद है दर की इबादत है ये फरमान नबी है अली। रूह नबी जिसमें नबी जान नबी, गुले ततहीर अली हक की शमशीर अली। पीरों का पीर अली अली, हक अली 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 मौला अली अली। दस्ते इलाह क्यों न हो शेरे खुदा अली, मकसूद हर अता है शाहे लाफता अली। जिस तरह एक ज़ात मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ न होगा कोई दूसरा अली। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। हक अली 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 मौला अली अली, हक अली 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 मौला अली अली। शाह मर्दान अली लाफता इल्ला अली। यूं तो तारीख़ इस्लाम का हर बाब ही इंतहाए खून आशाम अलम अंगेज़ वाक़यात को अपने दामन में समेटे हुए है, लेकिन उनमें वो बाब बड़ा ही खून कबा और शफ़क़ रंग है जिसमें करबला की दास्तान इश्क बयान की गई है, जिसको पढ़ते हुए दिल कपकपा उठता है, रूह थरथरा जाती है और बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाबा आय बाबा मैं सकीना, मेरी हालत जरा देखो बाबा। बाल बिखरे हैं मेरे, प्यार
से खुश्क गला, जल गए खैमे सभी, जल गया मेरा कुर्ता, बालियां छिन गई कानों से, लहू बहता रहा। बाबा मेरे रुखसार थे छोटे, शिम्र का हाथ बड़ा था, उसने मारा जो तमाचा, हुआ जख्मी मेरा चेहरा। क्या यतीमों पे सितम करता है कोई ऐसा, आपने नाम मेरा रखा सकीना बाबा, मुझे कोई भी सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कहते हैं सब लोग यतीमा बाबा। आपके बाद बड़े जख्म मिले हैं बाबा, सुनो दिन रात मेरे कैसे कटे हैं बाबा। बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीमा, बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीमा। जल गए खैमे भी, असबाब भी सब लूट लिया, झूला बेशीर का सज्जाद का बिस्तर भी जला, शिम्र ने कानों से बाबा गहे खींच लिए, आग दामन में लगी खून भरा है कुर्ता, मुझको दुर्रों से तमाचों से है इतना मारा। 31st एनुअल हुसैन डे, उसका जो सब्जेक्ट है डाइवर्सिटी एंड सॉलिडारिटी, और उसके साथ साथ पीस, हार्मनी, ह्यूमैनिटी, ये तीनों ऐसे एक सब्जेक्ट हैं। और अभी आपके सामने हमारे चीफ कमिश्नर साहब ने कहा, और वास्ता आज का माहौल, सारी दुनिया ग्लोबल पोजीशन आज क्या है, 1400 साल पहले क्या हालत थी, इसके बारे में एक खाका आपके सामने खींचा। मैं समझता हूँ कि उस वक्त जंग बदर में भी हम 313 लोग थे। जंग बदर भी मतलब हम लोगों ने इस तरीके से फतेह हुई थी, उसमें हम लोगों के साथ एक क़ुव्वत थी और एक रूहानी ताकत थी। मैं समझता हूँ कि आजकल वो रूहानी ताकत कहीं हम सब लोगों से काफ़ी दूर हो रही है, क्योंकि हमारे अंदर वो जज्बा, वो मतलब दीनी जज्बा पहले जैसा था उस अब काफ़ी कम नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ मैं ये भी आप लोगों को कहना चाहूँगा, हमारे अंदर एक तरह की एहसास कमतरी आ गई है। हम सोचते हैं कि भाई हमारे सामने हम माइनॉरिटीज़ हैं। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ हम हैं, होते हुए भी हम मेजॉरिटी में हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन जो है, इफ़ यू कंपेयर टू अदर्स, वी आर नियरली अबाउट 16%, एंड इट इज़ वी आर नॉट, मतलब हो सकता है कि आउट ऑफ 100 वी आर माइनॉरिटी। इफ़ यू टेक एनी अदर कास्ट, सो वी आर इन मेजॉरिटी। दैट फीलिंग वी शुड हैव एंड वी शुड फाइट फॉर आवर राइट। हमारे हक़ को हमको मांगना होगा और हमारे हक़ को हम पाने के लिए हर तरीक़े की कोशिश करनी होगी। मैं समझता हूँ कि इसमें हम कामयाबी भी मिलेगी। और आप लोगों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कर्नाटक के अंदर एक ऐसी हुकूमत है, ये हुकूमत आपकी आवाज़ सुनेगी और ये हुकूमत आपकी जो भी आप लोगों को जो हक़ मिलना है वो हक़ आप लोगों को लेना भी होगा, और ये हुकूमत आपका हक़ आपको देने के लिए तैयार भी है। बस इन चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।